Hello everyone, this is CS Divesh Gaul, practicing company secretary from Delhi. So today in this video, we are going to discuss a very important topic about the MCA V3 version. That is how to register DSC on MCA V3. We have received so many queries from the professionals through different social media platforms, whether the WhatsApp group, Gyan group, which we have created for the MCA V3 queries and the discussion, whether through Twitter, LinkedIn, Facebook, WhatsApp. So many questions we have received. And the most important or most, we can say, general question we have received: how to register the DSC on the MCA V3 version. So in this video, we will discuss some important aspect about the DSC registration on the MCA V3, and then we will show you the practical process step by step that how to register the DSC on the MCA V3 version. So the question number one, first we will discuss with the question so that we can clear our concept. The question number one is, if DSC already registered on MCA V2 portal, whether they are again required to register on the MCA V3 portal? The answer will be yes. Even if your DSC is registered on the MCA V2 portal and you are filing the form on the MCA V2 portal, आपको अगेन सेम डीएससी V3 पोर्टल पे भी रजिस्टर करने पड़ेंगे अगर आपको V3 पोर्टल पे कंपनी या एलएलपी का कोई भी फॉर्म फाइल करना है तो। क्वेश्चन नंबर 2, whether DSC can be registered from the registered user ID? The answer will be no. DSC can be registered only with the business user ID. Registered user ID से DSC रजिस्टर नहीं हो सकते हैं। Question number 3, how many DSC can be registered from one business user ID? Many person ask this question. The answer of this question is that only one DSC can be registered from the one business user ID. From a single ID, more than one DSC cannot be registered. Question number 4, whether it is mandatory to create director personal business user ID for registration of his or her DSC. See, many professionals ask the question कि they have registered the DSC of director from the professional user ID. So I must say this is not at all a correct thing. Every director to whom you are registering the DSC, जिस भी डायरेक्टर के DSC रजिस्टर कर रहे हो, उस डायरेक्टर की पर्सनल बिजनेस यूजर आईडी आपको एमसीए की साइट पे क्रिएट करनी पड़ेगी और उसी आईडी से उस डायरेक्टर के DSC आपको रजिस्टर करने पड़ेंगे एमसीए की वेबसाइट पे। Question number 5, whether it is advisable for professional to register DSC of director from his or her ID? I will say no. It is not at all advisable to professional to register the DSC of director from their ID, because if their professional will do the same, then professional will not able to register their DSC in their ID. Question number 6, whether a person can register DSC for more than one role? No. It is very specifically mentioned by the MCA in the FAQs and in the webinar also. They said one person can register his DSC only one role, whether as a director or whether as a professional or whether as a authorized representative. एक से ज्यादा रोल के लिए आप अपने DSC को रजिस्टर नहीं कर सकते। Now let us discuss what is the step, what is the process of filing or what is the process of registering of DSC. तो स्टेप बाय स्टेप हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में तो हम प्रैक्टिकल डिस्कस करेंगे, बट इस पे ऊपर प्रॉपर आर्टिकल हम ऑलरेडी पब्लिश कर चुके हैं। किसी को आर्टिकल नहीं मिला था मुझे पिंग करो, मैं आपको आर्टिकल शेयर भी कर दूंगा। तो लेट मी शेयर द स्क्रीन। सी फर्स्ट, जब भी आपको डीएससी रजिस्टर करना है तो मेक श्योर कि आपको लॉगिन करना है। मैंने ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ है और लॉगिन करना कैसे, लॉगिन करना है कैसे, आईडी क्रिएट करनी है, वो मैं एक सेपरेट वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। इफ यू वांट टू नो कि लॉगिन कैसे करना है या V2 आईडी को V3 आईडी पे अपग्रेड कैसे करना है, तो वो मेरी वो वीडियो देखिएगा, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको अपनी बिजनेस यूजर आईडी को लॉगिन करना है। दिस इज योर फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में जब आप एमसी सर्विसेज पे जाएंगे तो आपको जाना है एफओ सर्विसेज पे, स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 3 आपको क्लिक करना है एसोसिएट डीएससी पे। जैसे ही आप एसोसिएट डीएससी पे क्लिक करेंगे ये वाली विंडो आपके पास ओपन हो जाएगी। इस विंडो में यहाँ पे आपको एक सॉफ्टवेयर का नाम मेंशन किया हुआ है, डाउनलोड द इंस्टॉल लेटेस्ट डीएससी वेब सॉकेट। आप इसको क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिए। फिर यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर का नाम दिया हुआ है टू डाउनलोड एंड इंस्टॉल लेटेस्ट ईएम ब्रिज क्लाइंट केयर। ये दोनों सॉफ्टवेयर आप पहले इंस्टॉल कर लीजिए। दिस इज योर फर्स्ट स्टेप। एक बार इंस्टॉल कर लोगे तो हर डीएससी के टाइम आपको नहीं करना पड़ेगा, बट एक बार आप ये दोनों क्लिक करके इंस्टॉल कर लीजिए। डीएससी आप ऑलरेडी यूज कर रहे हैं तो पासवर्ड तो आपका ऑलरेडी आपने प्रिपेयर किया हुआ है, तो आपको पासवर्ड चेंज करने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज आप फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हो तो आप पासवर्ड भी चेंज कर सकते हो। दोनों सॉफ्टवेयर को कंप्लीटली इंस्टॉल करने के बाद जब स्टेप नंबर 4 क्लियर हो जाता है, स्टेप नंबर 5 में आपको क्लिक करना है एसोसिएट डीएससी पे। जैसे ही आप एसोसिएट डीएससी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्लिक करिएगा। यहाँ पे आप अपना जो भी अपना डीएससी है, आप जब डीएससी सिस्टम में लगाएंगे वो शो हो जाएगा।
यहाँ पे आपका नाम शो हो जाएगा, जिस भी नाम से आपका जिस पर्सन का डीएससी, आप उसका पासवर्ड मेंशन करिए और रजिस्टर पे क्लिक करिए। रजिस्टर पे क्लिक करके विंडो रोम करेगी और आपका डीएससी रजिस्टर हो जाएगा। दिस इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट प्रोसेस फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ डीएससी ऑन एमसी वेबसाइट। जैसा कि मैंने अभी बताया, आपको टोकन हमेशा जब भी प्रोसेस स्टार्ट करो, मेक श्योर कि टोकन आपका सिस्टम में लगाओ। V3 आईडी पे लॉगिन कीजिए, एफओ सर्विसेज पे जाके एसोसिएट डीएससी पे क्लिक कीजिए। एसोसिएट डीएससी पे क्लिक करने के बाद ये विंडो ओपन हुई, दोनों सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लीजिए। उसके बाद एसोसिएट डीएससी पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद टोकन सेलेक्ट कीजिए, पासवर्ड मेंशन कीजिए, क्लिक रजिस्टर कीजिए। जैसे रजिस्टर पे क्लिक करेंगे विंडो रोम करेगी और लास्ट में ये मैसेज आ जाएगा, कांग्रेचुलेशन, यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड योर डीएससी विद द MCA V3। So this is the process for registration of a DSC on the MCA V3 portal। अगर आपको V3 पोर्टल पे डीएससी रजिस्टर करने में कोई भी एरर आ रहा है, कोई भी इशू आ रहा है, तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपको इस वीडियो में भी, प्रेजेंटेशन में भी मिल गया है। आप उस पर व्हाट्सएप कीजिए, आप वीडियो में कमेंट कीजिए, चैट बॉक्स में लिखिए। We will try our best to resolve your queries because our only motto behind these videos कि जितनी भी प्रोफेशनल्स वहाँ फर्टर्निटी के मेंबर्स है, चाहे कंपनी सेक्रेटरीज है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, एडवोकेट्स है, सीएमएस है, सभी की हम क्वेरीज को रिजोल्व कर पाए। इसके लिए हम बहुत वर्क कर रहे हैं। हमने अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स भी बनाए हैं स्पेसिफिकली V3 वर्जन पे डिस्कस करने के लिए। ट्विटर, लिंक्डइन, सभी सोशल मीडिया के थ्रू हम डिस्कस कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं। So if you find this video useful, please share with your circle so that everyone can take the benefit from this video. Thank you so much.